Welcome students. Today we will discuss regarding power sharing among government at different levels. In previous video we discussed regarding power sharing among different organs of government. I explained to you regarding that government have three organs mainly, that is legislature, executive and judiciary. So that the power sharing of that at the same level, so that's why they are called horizontal division of power. Now we will see power sharing, that is of the government of higher levels and lower levels. See, they are sitting at different level, got it? They are sitting at different level and hence it is called vertical division of power. So first you understand, like India, here country is a stand. Country is divided into many states. A state is divided into many districts. And district is divided into village local government and urban local government. Okay. So village local government, there are three levels, that is Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jila Parishad. Similarly, urban local government has also three tiers, that is municipalities, municipal corporation, municipalities and Nagar Panchayat. So these all are having three levels. So you see, one level of government is ruling the whole country, means a general government for the entire country. It is known as federal government. Federal government. It can be known by different names in different countries. In India we call it central government or union government. See, central government or union government, this is the government that controls or that has jurisdiction over all the countries. Okay? All parts of the countries. Means whatever law it makes, it applies to all part of the country, all citizens of the country. Now see, the country is divided into a state. See, it is not necessary that every country has the same division. Like some country may have province or a state, some country may not have. As you see in Belgium and Sri Lanka. Belgium divided into several states, but Sri Lanka, after the country divided, districts are there. Now see, so after the central or union government, there is a state government. A state government, the whole country is divided into many states. Union territory is also there. Union territory is directly controlled by central government or union government. Okay, so a state government, the jurisdiction of a state government applies to within the state. Several states in India. Okay. So all the law that a state makes, that is applied to the citizen within the state only. And the after lower levels, means within the state, there are districts and districts. And districts have two tier of the government, two type of government, that is municipality and panchayat. Panchayat is also divided into three parts, means three levels, lower to higher levels. Lower to higher levels, that is village panchayat at village level, then after panchayat samiti, then Jila Parishad or district, you can say. Okay. Similarly, this is our local body. This is also divided at three tiers. और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत. ये भी देखिए नीचे से ऊपर जाता है. ठीक है. ये भी देखिए, ये जो छोटा लेवल है ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये आपका उससे बड़ा लेवल है. ठीक है. अब देखिए, जहां भी फर्स्ट जो है, आप ये जान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट कैन बी प्रेजेंट इन एवरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जहां ये प्रेजेंट है, मीन्स जहां सेंटर है, जहां स्टेट है, या फिर जहां फेडरल है और ये आपका प्रोविंशियल है, इसको हम लोग प्रोविंस कहते हैं आपका अलग अलग कंट्री में. ठीक है. वहां आपका
सबके बीच पावर जो है डिवाइडेड है। अब क्यों डिवाइडेड है पहले ये समझिए। देखिए ये जो है अपने एरिया के लिए लॉ बनाता है, ये अपने एरिया के लिए लॉ बनाता है। वैसा हो सकता है कि दोनों में डिस्प्यूट हो, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दोनों का पावर जो है बता देता है कि आप जो है इस बेस पे या फिर इस सब्जेक्ट पर अपना लॉ जो है बना सकते हैं और उस लॉ को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया में देखिए आपका पार्ट 11 जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन बतलाता है। सेंटर स्टेट में लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेशन जो आपका लॉ बनाता है। जैसे हमने आपको बताया था ये जो है यहाँ लॉ बनाने के लिए मेनली क्या है? पार्लियामेंट है। यहाँ लॉ बनाने के लिए आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी जो लोकल लेवल पे लॉ बनता है, आपका पंचायत में लॉ बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लॉ बनता है, लेकिन जनरली जो है स्टेट उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यानी कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वह होल कंट्री पे अप्लाई होगा। ये जो लॉ बनाएगा ये अपने स्टेट में, जैसे बिहार का गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाता है तो केवल बिहार में अप्लाई होगा, ना कि आपका होल कंट्री में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन कहने का मतलब कौन लॉ बना सकता है, ये हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, तो इसका जो है आपका जुरिसडिक्शन कहां तक है, इसका जुरिसडिक्शन कहां तक है। फाइनेंशियल रिलेशन, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं तो कौन सा टैक्स कौन कौन कलेक्ट करेगा और कैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कलेक्ट करेगा सेंटर या स्टेट तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब जो है आपका फाइनेंशियल रिलेशन है। 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट पे सेंटर और किस सब्जेक्ट पे स्टेट जो है लॉ बना सकता है। तो इसमें आप पढ़िएगा आगे भी, या फिर क्लास 8 में आपने पढ़ा, आप पढ़े होंगे। एक है आपका यूनियन लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, उसके बाद है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। एक और है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो है आपका सेंटर और स्टेट का पावर का डिवीजन कर दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट में वैसा सब्जेक्ट को रखा गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे डिफेंस है, फॉरेन रिलेशन है, ये सब जो है आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। तो उस पे जो लॉ बनाने का काम है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और यह लॉ जो है आपका होल कंट्री में एप्लीकेबल होगा और यह जो है ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इसको आपका ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पर अप्लाई होगा। उसी तरह से स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में भी जो है आपका ये जो है इस पे लॉ कौन बना सकता है? स्टेट बनाएगा। जैसे पुलिस है, ठीक है, आपका और भी जैसे प्रिजन है, जेल, ये सब से रिलेटेड जो लॉ है, मतलब जो लोकल लेवल की जरूरत है उसको स्टेट लिस्ट में रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस पे लॉ जो है उस स्टेट का गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो ये दोनों मिलकर बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट है, उस पे जो है लॉ सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। जैसे आपका एजुकेशन है, ठीक है, आप सेंट्रल स्कूल का नाम सुने होंगे, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो इस पे लॉ जो है दोनों बना सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? एजुकेशन को जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको आपका अच्छा से जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको रखने का कारण है कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो स्टेट जो है अकॉर्डिंगली अपने सिटीजन्स के लिए मीन्स जो है लॉ बना सकता है, उस अनुसार जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट पर लॉ जो है स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। इन केस जो है डिस्प्यूट है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई लॉ जो है ये भी बनाया है और यूनियन गवर्नमेंट भी बनाया है, तब जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो है अप्लीकेबल होता है और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है वहां नल हो जाता है। अब देखिए रेसिड्यूअरी लिस्ट भी है, तो इसमें देखिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें 100 सब्जेक्ट के आसपास है, इसमें 60 के आसपास है, इसमें भी लगभग उतना ही है, तो 52 के आसपास है। तो देखिएगा कि ये जो आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें भी नहीं मेंशन हो सकता, इसमें भी नहीं मेंशन हो सकता है, इसमें भी नहीं मेंशन हो सकता है, तो उसको रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में रखते हैं। तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट का जो आपका पावर है वो इसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। तो ये जो लॉ है आपको पार्लियामेंट में स्पेसिफाइड है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में,
और जहां भी इस तरह का आपको डिवीजन ऑफ पावर मिलेगा, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में सबका जो फंक्शंस है, सबका जो पावर है, वह डिवाइड किया हुआ रहता है। आपने देखा कि ये पावर डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये जो एक जगह से ये फुल होल कंट्री को नहीं देख सकता है, इसीलिए इसको छोटे छोटे लेवल में डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फैसिलिटी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो है आपका फेडरल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिवाइड कर किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इसलिए कहता है क्योंकि आपने देखा पावर जो है लोअर लेवल से हायर लेवल, या हायर लेवल से लोअर लेवल में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से ये जो आपका जो सेल्फ रूल का है, सेल्फ रूल, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सिटीजन पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा से ज्यादा सिटीजन पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद ये जो है डाइवर्सिटी एकोमोडेट करने में हेल्प कर सकता है, डाइवर्सिटी एकोमोडेशन में। ठीक है, ये जो आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, सबसे पहले तो सेल्फ रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो है डाइवर्सिटी एकोमोडेशन में यह हेल्प करता है। उसके बाद यह जो है आपका जो भी डाइवर्सिटी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है ना, वह इससे सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा बेल्जियम में, ठीक है, वो आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी था, और ये जो है आपका डिवीजन ऑफ पावर से ही जब डिफरेंट लेवल में पावर जो है डिवाइड किया गया, तब जो है आपका वह डिस्प्यूट सोल्व हुआ। ठीक है, श्रीलंका में इसको रिफ्यूज किया गया। क्लियर हुआ? तो ये है आपका पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसको हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहेंगे, क्योंकि पावर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल, ठीक है, में डिवाइडेड होता है। ऐसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी होगा वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लेवल का जो गवर्नमेंट है उसका पावर स्पेसिफाई होता है। ये जो आपका म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत है वह पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। बाद में 1992-93 के आसपास जो है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और ये जो है आपका एक्ट लाया गया, ठीक है, जिससे कि जो आपका सेल्फ रूल जो है विलेज तक पहुंच गया, यानी विलेज लेवल का भी जो है गवर्नमेंट में पावर को दिया गया। हालांकि अभी भी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है, और सेल्फ रूल में जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में यह जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू।